Hello students, my name is Shishra Sharma and I am from CPJ Academy. Here in this lecture, you will gonna learn about the living world. Yes, as you know, it's a chapter from your biology NCRT chapter 1. So yes, before knowing living world, you must know, you know, there are two branches of biology. So let's start this interesting chapter with very more interest. So yes, before knowing the living world, you should know, you must know even that what is biology. As you can see, biology basically आपका दो वर्ड से कंसिस्ट है. फर्स्ट वन इज बायो मीन्स लिविंग. ओके, एंड जहां पर भी आप सफिक्स वर्ड देखते हैं लॉजी, दैट मीन्स स्टडी. सो बेसिकली biology involves study of living things. ओके, एंड आफ्टर दैट इफ यू सी, सो बायोलॉजी की भी दो ब्रांचेस होती है. फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज जूलॉजी एंड सेकेंड वन इज बॉटनी. ओके, so in zoology, as you know, as the name suggests, again logy stands for study and this zoo stands for चिड़ियाघर. आप गए होंगे, obviously you go there, just have a look कि वहाँ कौन कौन से animals and all that. So yes, study of animals, that is your zoology, and botany is all connected to the plants. Okay, study of plants is known as botany. So in this lecture what I cover, that is about zoology. ठीक है, तो इस सेशन में सब कुछ मैं जूलॉजी का ही कवर करूंगी. जो भी इसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होंगे या जो भी कंपोनेंट्स आएंगे, आई विल डेफिनेटली गोना कवर दिस. So yes, this is all about biology. Now coming back to the chapter, that is the living world. So yes, in living world, what is the first question that comes in your mind? That obviously हम इसमें लाइफ की ही बात कर रहे हैं. लिविंग वर्ड मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स हैं. सो ऑब्वियसली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ. Life of what? Life of animals, life of birds, life of humans. Basically we are talking about life which is present only in living things, है ना. So basically life, जो हम लाइफ की बात करें, एक्चुअल में लाइफ है क्या? So life, it's a unique complex organization of molecules, okay, which is expressing through chemical reactions. इस पॉइंट पे भी जब आप मुझे सुन रहे हैं या आप कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, इवन इन दैट केस देर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस दैट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी. ओके, जो आपको अभी आपको पता भी नहीं है जिस चीज के बारे में, स्टिल वो सब रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है, विच विल डेफिनेटली लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, yes, responsiveness, adaptation and reproduction. Basically this is life. So अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में that what do you mean by life, so in a very nutshell you can say that life is a unique complex organization of molecules which is expressing through chemical reactions, which obviously you can't see, which is not visible, but still that all chemical reactions will lead to growth, development and responsiveness along with reproduction and adaptation. This is what actually life is. तो yes, जैसा कि अब हम इस वीडियो में सिर्फ लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सो इन दैट केस यू मस्ट नो व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखते हो, सो इट्स लाइक अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम. बट व्हाट इफ अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो क्या वो लिविंग नहीं होगा? That means there are certain defining criteria or defining properties which we can use to say whether this is living or not living. Okay, but before that, so let's just come to the point that what is living organism. So a living organism is self-replicating. Okay, this is a basic definition for the living organism. So a living organism is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system, okay, which is capable or who is capable of responding to external stimuli. एक्चुअली इसमें सबके सब क्राइटेरियाज जो थे वो सम अप हो गए, बट स्टिल आई विल डेफिनेटली टेल यू each and every types or the property of the living organism in upcoming slides. So just stay connected.
सो अगर आप देखते हैं कि जो मेन प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बेसिकली दे आर 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज ग्रोथ, second one we are having is reproduction, third is metabolism, fourth one is cellular organization, and fifth one is consciousness. We will definitely read all these properties, or we'll go through with all these 5 properties in details or in a deep manner. But before that, these properties are certain defining characters हैं ये. सो इन पांचों में से लाइक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ऐसे ही जितने भी ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. फर्स्ट यू मस्ट नो दैट. Okay, so just see this word that is defining feature. Okay, let me show this. Yes, so yes, this is defining feature. Now here the question is, what do you mean by defining feature? ओके, डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि आप जिस भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, आई टोल्ड यू ना कि देर आर 5 प्रॉपर्टीज, लाइक इट इज ग्रोथ, consciousness is there, reproduction is there. So whatever the property you are talking about, that property must be present in all living organism without any exception. ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और एक चीज और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, दैट प्रॉपर्टी विल बी टर्म्ड एज that property will be termed as defining feature or defining property or defining characteristics of particular living organism. That means आप जिस भी property की बात कर रहे हो, मतलब whatever you are talking about, ठीक है, कोई भी property है, बस जो main चीज है that must be present in all living organism. ठीक है, जितने भी लिविंग है सब में होनी चाहिए, और एब्सेंट होनी चाहिए, किसमें एब्सेंट होनी चाहिए? वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Fine, is it clear? So just let's discuss each and every property of like growth and everything, like उनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है. और यू कैन से कि अगर वो डिफाइनिंग फीचर है तो उसे हमने डिफाइनिंग फीचर क्यों कहा, या फिर अगर वो फीचर नहीं है डिफाइनिंग तो हमने उसे क्यों कहा कि yes, this is not a defining feature. Yes. So yes, let's start by the first property, that is growth. So now what is growth? See, आप ग्रोथ किसे बोलोगे कि अगर बेसिकली इसकी दो प्रॉपर्टी है. ओके, अगर कोई चीज नंबर में बढ़ रही है और मास में बढ़ रही है, ठीक है, या तो उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर उसका मास बढ़ रहा है बाय सेल डिवीजन, देन दैट विल बी नोन एज ग्रोथ. सो इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन. फाइन. सो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स और इवन इन केस ऑफ अस, इफ वी कंपेयर, सो वी हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन लाइक 50 to 60, 80, और पुराने जमाने में तो 100 ईयर्स तक होते थे. तो दैट मीन्स वी आर जस्ट सेइंग ग्रोथ जो है एक लिमिटेड टाइम तक ही है ना, हमारे केस में. बट प्लांट्स तो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो ग्रो करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, है ना. एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर कि जो ये प्लांट्स है ये तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर और साइज, whatever you can say. ठीक है, और इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है. कोई 50 ईयर्स तक जीता है तो कोई 80 तक, और कोई तो 10 ईयर्स तक ही जीता है. ठीक है, तो दैट मीन्स जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही है. सो बट जो सेल डिवीजन है दैट अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. ठीक है, सेल डिवीजन तो होता रहता है ऑब्वियसली. सो बेसिकली, बट एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर, सो लिविंग में तो ग्रोथ हो रही है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें. ठीक है, वो तो ग्रो कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट द डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर इज समथिंग जो लिविंग में तो हो बट नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए. एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर, इन माउंटेन, ठीक है, ये भी तो साइज में इंक्रीज कर रहा है. लाइक पहले माउंटेन का स्ट्रक्चर इतना सा था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसका स्ट्रक्चर ये डेवलप होता गया. ठीक है, इसका साइज जो था वो बढ़ता गया. दैट मीन्स ग्रोथ तो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हुई. जो साइज बढ़ रहा है दैट इज ड्यू टू accumulation of matter. So basically, growth, it is the increase in mass and size, as I just told you before.
सो डज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो? ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो माउंटेन है ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो माउंटेन ग्रो कर रहे हैं दैट मीन्स जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें भी ग्रोथ आ रही है, दैट मीन्स ये तो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो येस, दैट इज वाई जो आपका ग्रोथ है दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इज ग्रोथ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सो द आंसर इज नो, growth is not a defining property. Now why growth is not a defining property? Because non-living object also shows growth by accumulating matter over there. So yes, growth is not a defining property, you can say. In another word you can say growth को अगर आप types में देखो ना, तो जो growth है वो दो types की होती है basically. First one is intrinsic, okay, and second one we are having is extrinsic. Okay, so this intrinsic मतलब अगर वो ग्रोथ, जो भी सेल की ग्रोथ है अगर बॉडी के अंदर हो रही है, इनसाइड द बॉडी है, ठीक है, देन इट विल बी टर्म्ड एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है क्या वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, so yes, intrinsic growth is a defining property while this extrinsic one is not a defining property. Why? Because ये जो extrinsic growth है ये आपका accumulation of matter की वजह से हुआ है, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स वो आपकी इंट्रिंसिक होगी। और एक्सट्रिंसिक मतलब अबव द सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है, जैसे कि पहाड़ों के ऊपर होता है, बर्फ जम गई है, या फिर वो जो चट्टाने मिट्टी होती है एंड ऑल दैट, वो सब कुछ कवर होता जा रहा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सो येस, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी व्हाइल इंट्रिंसिक ग्रोथ इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। Okay, let's come to the next one, that is reproduction. So yes, in reproduction, reproduction का मतलब क्या है? Production मतलब production of something. In reproduction we are saying production of progeny having features similar to those of parents. ठीक है, आप अपने मम्मी पापा की तरह लगते होंगे। अगर आप एक दूसरी स्पीशीज को देखें, लाइक अगर आप डॉग की बात करो तो डॉग अपने ही डॉग के कैरेक्टर पे ही जा रहा होगा। सो इट इज a kind of reproduction, ठीक है। So reproduction, it is the production of progeny, okay, having features similar to those of parents, okay। अब ये जो आपका रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप्स के होता है। फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मी राइट डाउन हियर, okay। First one we are having is asexual reproduction and second one we are having is sexual reproduction. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोट्स वन होते हैं, दे यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय अ मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली यू कैन सी जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपने ही पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओनली वन स्टैंड्स फॉर सिंगल पेरेंट, ओके, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट इज एग्जैक्टली कॉपी ऑफ द पेरेंटल वन, ओके। सो अब एक बात ये आती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ की बात करें या फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सेम है, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। जो मेन मोटिव है उनका सिर्फ नंबर में इंक्रीज होना है। दे डोंट वांट कि उनको कुछ डिग्री विग्री नहीं लेनी, तुम्हारी तरफ पढ़ना वढ़ना नहीं है इतना, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, दैट इज रिप्रोडक्शन का मतलब है सिर्फ ग्रोथ, कि सिर्फ नंबर इंक्रीज करना है, 1 से 50 भी हो जाए एक ही बार में, ठीक है। सो इन दैट केस रिप्रोडक्शन जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है दीज आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन ओनली। सी इन केस ऑफ अस दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो था असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है
कि वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, क्योंकि अब मम्मी और पापा पे हैं, ठीक है, तो बच्चे मम्मी पे भी जा सकते हैं या फिर पापा पे भी जा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही कि जो कैरेक्टर्स है जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज हों, बिकॉज यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उस केस में क्या था कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए आइडेंटिकल कॉपीज आ रही है जो ऑफस्प्रिंग है। सेकेंड हैंड आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस केस में क्या है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब आइडेंटिकल कॉपीज तो नहीं है, सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टर्स जरूर हो सकते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. So just tell me, reproduction is defining or not defining? It is not defining property. Why? See, there are certain women's or female infertility is there. ठीक है, कई में जो मेल्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी होती है, तो दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लिविंग नहीं हुए, वो है तो लिविंग ही, ठीक है। दैट इज वाई जो रिप्रोडक्शन है दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. लेट मी शो हियर, एज यू कैन सी म्यूल. म्यूल पता है ना आपको, हाइब्रिड होता है जो कि हॉर्स और डोंकी के जीन्स को मिला के बना है, ठीक है, हॉर्स प्लस सॉरी डोंकी, ठीक है. Then there is worker honeybee. It is this mule is also sterile one. ठीक है, this one is not able to reproduce. As same this worker honeybee is also not able to reproduce. Many organisms, just have a look there. Many organisms do not reproduce. Okay, like mules, worker honeybees, or infertile human couples. ठीक है, that means reproduction is not a defining property of living organism. So yes, let's come to the next property, that is metabolism. Now first of all, the first thing that comes in your mind is what is metabolism. So metabolism, अभी इस टाइम जब आप ये पीपीटी देख रहे हो या फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हो या इवन आप जब सो भी रहे हो या मैं बोल रही हूँ, सो इस टाइम थाउजेंड और मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है. However, we can't feel this, as you can't feel, same here, मैं मुझे भी feel नहीं हो रहा, but yes, there are certain biochemical reactions that is going inside our body that we can't feel, but yes, it exists. So it is metabolism. Okay, so what is metabolism? It is the sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. Okay, so that is known as metabolism. Now if you see metabolism, so it can be of two types. Okay, it can be of two types. First one is catabolism, as you can see here, in that way there is catabolic pathway, and second one is anabolic or anabolism pathway, or you can say, you can have a look here, anabolic pathway. Okay, so in that sense, and catabolism, cata means cut, ये आपको याद रखने का एक तरीका है इस वर्ड को. C stands for catabolism. Cata means cut. That means जो भी आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो रही है, दैट मीन्स दो चीजें टूट के बन रही है, ठीक है, ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो रही है, दोज रिएक्शंस विल बी टर्म्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, जैसे आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है, लेट मी राइट हियर, just a minute. So yes, as you can see here in that picture, metabolism, that means sum up of all chemical reactions that is going inside your body. So it can be of two types. First one is catabolism and second one we are having is anabolism. Okay, catabolism means, let me write here, catabolism means breakdown. Okay, that means breakdown of what? Breakdown of solutions or breakdown of reactant inside your body, whatever it is, but it's a breakdown reactions. Okay, it's a breakdown reactions. Okay, so catabolism में क्या हो रहा है आपका, रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है. While in case of anabolism, in photosynthesis, photo means light and synthesis means production of something. Okay, so that means
production of food, presence in light. Okay, that is your photosynthesis. It's a kind of anabolism reaction if you want to say something to that. ठीक है, अब ये जो सारी रिएक्शंस है, ये सारी रिएक्शंस किस में हो रही है? एक सेल वाले सिस्टम में हो रही है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से द वर्ड फॉर दैट इज, लेट मी राइट दिस. ये जो रिएक्शंस हो रही है, ये आपकी जो है रिएक्शन, ये होती है आपकी इन वीवो. ठीक है, ये आपकी इन वीवो काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा. ठीक है, देयर इज अनदर टर्म that is in vitro. Now what is in vitro metabolism? In vitro is something like, मैंने आपको कोई टेस्ट ट्यूब दे दी, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि लेट मी टेक दिस पेंसिल, यस, एंड मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे इसके अंदर आप मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस करके दिखाओ. सो इज इट पॉसिबल कि आप वो रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकते हो? यस और नो? करेक्ट, यू can do this reaction inside this test tube. ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब ही यही है दैट आप उस रिएक्शन को बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर ना करके एक आर्टिफिशियल सिस्टम में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, ऑल्दो जो ये आपका ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, जो भी आप रिएक्शन करोगे, ऑल्दो वो आपकी लिविंग सिस्टम में नहीं हो रही. ठीक है, ये लिविंग सिस्टम में नहीं हो रही, but still it is a living reaction. Why? Because you have to add something in that test tube, and that something that you're gonna add, that is known as a bio reactant or enzymes. ठीक है, you can say you have to add some enzyme, तभी ये रिएक्शन होगी. ठीक है, अब आपने इसके अंदर एंजाइम डाला तभी वो रिएक्शन होगी. दैट इज वाई जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो इन विट्रो है, ये भी आपका जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज यू नीड समथिंग काइंड ऑफ एंजाइम और बायो रिएक्टेंट टू मेक दिस रिएक्शन हैपन. दैट इज वाई येस, बायो रिएक्टेंट और सॉरी मेटाबॉलिज्म इज अ काइंड ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ओके, so yes, that is, you can see or you can have a look. Let me take, yes, so metabolic reactions can be demonstrated outside the body. That means you can demonstrate this outside the body in a cell-free system. However, for that purpose, जैसे मैंने अभी आपको बताया, that you have to take certain enzymes or bioreactants so that the reaction that you want कि बाहर हो, तभी वो रिएक्शन होगी. ठीक है, सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो. ठीक है, जो इन विट्रो रिएक्शंस हैं, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग तो नहीं है, बट yes, they are living reactions. So yes, metabolism is a defining property. Let's come to the next one, that is cellular organization. So yes, cellular organization. See, cellular organization, as you know that each and every organism is made up of cell. ठीक है, अगर मैं इस पेन की बात करूं, क्या ये पेन जो है ये सेल से बना हुआ है? नहीं बना हुआ. और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिर्फ लिविंग में होनी चाहिए वो नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए. और आपको पता है कि किसी भी नॉन लिविंग, जो भी कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, वो नहीं बनी हुई, ठीक है ना, सेल से. ठीक है, जो सेल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों? क्योंकि सी देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे, एज यू नो दैट एवरीवन इज मेड अप ऑफ सेल, है ना. चाहे हम एक कुत्ता, घोड़े, एक इंसान, एक प्लांट, किसी भी चीज की बात करें, whether we are talking about plants or animals or humans, we can say that each and everyone is made up of cells. However, these non-living like pen or chair or table or wooden things or whatever you see around you, it is not made up of cells. That means non-living में वो चीज है ही नहीं. तो yes, जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, अब ये फंक्शनल कैसे है, क्वेश्चन ये है. सी, फंक्शनल का मतलब ये है कि देखो, एक तो आप बने सेल से हुए हो, दूसरा जितने भी केमिकल रिएक्शंस है आपकी बॉडी के अंदर, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं इस टाइम पे, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन और रेस्पिरेशन, ठीक है, जितना भी आपका काम हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड द सेल इटसेल्फ. ठीक है, एक तो आप बने ही सेल से हो, दूसरा सारा काम भी सेल के अंदर हो रहा है. दैट इज व्हाई दिस is known as, or you can say your cell is a structural and functional unit.
ओके, सो यस, हियर माय पॉइंट इज क्लियर कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यस, इट इज अ defining property. Yes, last property we are having is consciousness. Take this. Yes, so it's consciousness. See, consciousness मतलब कि आप अवेयर हैं, ठीक है, आप कॉन्शियस है और आप रिस्पॉन्ड बैक भी कर रहे हैं, ठीक है. सो मीन्स यू कैन से इन नटशेल दैट एबिलिटी ऑफ अवेयरनेस और टू रिस्पॉन्ड बैक टू द स्टिमुलस और स्टिमुलाई, दैट इज कॉन्शियसनेस. अभी जो कॉन्शियसनेस है, वेदर यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और इन केस ऑफ एनिमल्स, दोनों में ही प्रेजेंट होती है कॉन्शियसनेस, तो है ही. नाउ द क्वेश्चन इज, एनिमल्स में कॉन्शियसनेस कैसे हुई? सी, एनिमल्स में कैसे हुई? अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाओ, एकदम से पीछे कर लोगे, दैट मीन्स यू आर कॉन्शियस टुवर्ड्स दी सराउंडिंग्स, है ना, दैट्स व्हाई यू आर रिस्पॉन्डिंग बैक. अभी तुम एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो, so that you are conscious, ठीक है. in case of animals this is also there, ठीक है. लाइक यू कैन से, आपने सुना होगा कि अगर लिजार्ड कहीं अगर आपको दिखाई देती है या छिपकली कहीं दिखती है, आप अगर उसको क्या बोलते हैं उसे, मारने के लिए भागोगे या कुछ भी करोगे, उससे पहले ही वो अपनी जो उसकी टेल है, जो लिजार्ड की होती है, वो उसे तोड़ देती है खुद से. क्यों? दैट लिजर्ड इज कॉन्शियस कि तुम उसे हर्ट करने आ रहे हो, ठीक है, तो वो खुद को बचाने के लिए अपनी पूंछ तोड़ देती ताकि आपका ध्यान वहां चला जाए. दैट मीन्स वो जो है कॉन्शियस है, ठीक है, उसने अपने एनवायरनमेंट को सेंस किया, अवेयर है उसके लिए, और तभी उसने रिस्पॉन्ड बैक किया, ठीक है. दैट मीन्स कॉन्शियसनेस इज अवेलेबल इन एनिमल्स एंड ऑल्सो इन प्लांट्स. ऑब्वियसली अवेलेबल है, अगर हम में कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो देर इज नो नीड टू स्टडी और समथिंग एल्स, ठीक है. सो कॉन्शियसनेस जो है बेसिकली इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑल living organisms, whether we are talking about plants or you know animals like prokaryotes और eukaryotes, किसी की भी बात कर रहे हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स. जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, these are simplest one, while eukaryotes are the complex one in nature, ठीक है. इन ऑर्गेनाइजेशन have the ability to sense the conditions in their surroundings, okay, in their surroundings, and respond to these stimuli, which may be, अभी जो stimuli है वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है. अब प्लांट्स के केस में कॉन्शियसनेस कैसे है? एक तो देखो, एक प्लांट होता है टच मी नोट, जैसे ही आप उसे टच करोगे वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, वो झुक जाता है डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, वो झुक जाता है. सो इट्स दैट कि वो कॉन्शियस है, सेंसिटिव है प्लांट जो है आपके टच से, ठीक है, ह्यूमन स्किन से, यू कैन से. So the another thing for that is in case of plants, the another thing is photoperiodism. I have, yes, this is photoperiodism. You must have heard कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करते हैं. लाइक कुछ ऐसे होंगे जैसे रेडिश है, ठीक है, वो लॉन्ग डे प्लांट्स है या लॉन्ग लाइट प्लांट्स. दैट मीन्स उसे सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है कंपैरेटिवली टू द शॉर्ट डे प्लांट्स. तो फोटोपेरियोडिज्म इज समथिंग कि सीजनल प्लांट जो आप सुनते हो, दैट इज अ फोटोपेरियोडिज्म. इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन, सो इट्स द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, कि कौन से प्लांट को सनलाइट ज़्यादा चाहिए और कौन से प्लांट को सनलाइट कम चाहिए, उसी के ऊपर बेस हो जाती है कि वो कब ग्रो करेगा, कब फ्लावरिंग होएगी उसमें या कब नहीं होगी, ठीक है. तो इट्स अ काइंड ऑफ फोटोपेरियोडिज्म. तो प्लांट्स भी शो कर रहे हैं. क्या ये जो नॉन लिविंग चीज़ है, चाहे मैं इसकी बात करूँ, चाहे मैं ये इसकी बात करूँ, क्या ये कॉन्शियस है इस चीज़ के लिए? नहीं है कॉन्शियस, है ना. दैट मीन्स जो ये कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है, ये किसी भी नॉन लिविंग चीज में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लिविंग में ही है. दैट इज वाई जो आपकी कॉन्शियसनेस है, इट इज अ, so yes, this is your defining property of living organism. So yes, this is all about the living world.